السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن بھر کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ لیفٹیننٹ جنرل پانڈے کی لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ پہلی میٹنگ، سیکورٹی ایجنسیاں تال میل اور ہم آہنگی کو برقرار رکھیں، منوج سنہا۔ کورونا بحران، ڈاکٹروں اور محکمہ صحت کے دوسرے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ، ناظم صحت کشمیر کا تازہ حکم نامہ۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی تباہی جاری، 24 گھنٹوں میں 1,03,000 سے زائد نئے کیسز۔ جموں کشمیر میں 442 افراد کورونا میں مبتلا، مزید 2 لوگوں کی موت، عوام میں تشویش۔ سری نگر میں ایک اور غیر سیاح کی کورونا سے موت، ایئرپورٹ پر کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے والا عملہ نااہل۔ ہفت چنار سری نگر میں آگ کی ہولناک واردات، جوان سالہ خاتون کم سن بیٹے سمیت جاں بحق، علاقے میں ماتم۔ ٹولپ گارڈن میں جشن، ہمارے ننے منے ٹولپ مرجھا رہے ہیں، برتھنے کے باشندوں کا سرکار پر طنز۔ بادشاہی باغ کے باشندوں کا ساؤتھ کشمیر سے آ رہی گاڑیوں کے خلاف دھرنا، کئی گھنٹوں تک ٹریفک کو رکھا بند۔ کرنا میں مارکیٹ چیکنگ، بغیر ماسک لوگوں پر جرمانہ عائد، ایس او پیز پر سختی سے عمل کرے انتظامیہ۔ آف لائن امتحانات میں شامل ہونے سے انکار، گورنمنٹ وومنز کالج پریڈ کے طالبات کا احتجاج۔ اور جن پولیس اہلکاروں نے پوری زندگی ریاست کے امن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے صرف کی، آج سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، فوج کی 15ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے جموں کشمیر میں سلامتی کے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سرکاری ترجمان نے بتایا کہ 15ویں کور کی کمان سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی ملاقات میں لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو جموں کشمیر میں حالیہ داخلی سلامتی کی پیش رفت اور موجودہ سلامتی کے منظرنامے سے آگاہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مرکزی خطے میں سیکورٹی کے انتظام سے متعلق مختلف اہم امورات پر تبادلہ خیال کیا۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کیسوں میں آئی تیزی کے بعد محکمہ صحت میں تعینات تمام ڈاکٹروں، میڈیکل افسروں اور دوسرے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق ڈاکٹروں، نرسوں اور سبھی نیم طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ناظم صحت کشمیر نے چیف میڈیکل افسران، میڈیکل سپرنٹینڈنٹوں اور دیگر حکام سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ موجودہ صورتحال میں سبھی ڈاکٹر، میڈیکل افسرز، نرسز اور دیگر طبی و نیم طبی ملازمین ڈیوٹی پر حاضر رہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تباہی جاری ہے اور اس کے نئے مریض اور ایکٹیو کیسز کی یومیہ تعداد انتہائی سرعت سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں 1,03,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 1,25,90,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہاں جموں کشمیر کے اندر بھی کورونا کی دوسری لہر کی رفتار انتہائی تیز ہے اور گزشتہ 3 روز سے اس کے اندر یومیہ کم و بیش 500 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ وہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کورونا وائرس میں مزید 442 افراد کو مبتلا پایا گیا، جبکہ اس وائرس نے مزید 2 لوگوں کی جان لے لی ہے۔ وہیں سری نگر کے سی ڈی ہسپتال میں داخل گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح کی کورونا میں مبتلا ہونے سے موت واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ سیاح کو 2 اپریل کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جو شدید کورونا نمونیا میں مبتلا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سیاح کا بھی سری نگر ہوائی اڈے پر کورونا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ قبل ازیں چند روز قبل اس ہسپتال میں کورونا سے ہی فوت ہونے والے مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح کا بھی سری نگر ہوائی اڈے پر کورونا ٹیسٹ منفی آیا تھا،
जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि एयरपोर्ट पर तैनात कोरोना वायरस का टेस्ट करने वाला अमला सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी तरफ इंतजामिया को फौरी तौर ध्यान देने की ज़रूरत है। हबचनाज श्रीनगर इलाके में मुबैना बिजली शार्ट सर्किट के बायस नमूदार आग की एक होलनाक वारदात में एक 40 साल खातून अपने 6 साल लखती जिगर समेत लुक्म अजल बन गई, जबकि 4 मकानात और उनके अंदर मौजूद सारा घरेलू सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया और 2 दीगर रहायशी मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 6 मकान यहाँ पे जल गए, इनमें से 2 की डेथ है, एक 6 साल का बच्चा है और दूसरी 40 ईयर्स की एक ये खातून है जिनका ये गुलाम मोहम्मद शेख उनकी वाइफ है वो, और उनका बच्चा वो अभी इस टाइम यहाँ मेडिकल कॉलेज में है, अभी उनकी डेड बॉडी वहीं पे है। तो अभी गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी? गवर्नमेंट से अपील है कि हम यहाँ पे गरीब तबके हैं, हम दिन को मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं, बच्चे बालिग हो गए, हम बेटी वाले हैं, कुछ बेटियों का ज़्यादा था वो भी जल गया। अब पुरजोर अपील है कि हम गरीबों के लिए कुछ मदद करें। अभी बहुत बदकिस्मती ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अभी यहाँ कोई नहीं आया है शायद, ये सब लोग ये बोल रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, इतना बड़ा मैसिव फायर में यहाँ हो गया है सिटी में, पर अभी तक न फायर सर्विस का भी काफ़ी लेट फुकदा रहा कल रात को, और ऊपर से अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं आ रही है। इधर बरथना कमरवारी के बाशिंदों ने प्रेस कॉलोनी में आकर गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि इलाके में गंदे और बारिशों के पानी की निकासी के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार के पास टूलिप गार्डन और बादामवारी में जश्न मनाने के लिए बेतहाशा रकूमात हैं, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने टूलिपों के लिए स्कूल जाने के लिए रास्ता ठीक करने के लिए पैसा नहीं है। मेरा नाम हिदायत बुखारी है, हम बरथना कमरवारी से हैं। पिछले 20-25 दिनों से हमारे एरिया में पानी चढ़ा हुआ है और लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश बैठी बनी हुई है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था एसएमसी श्रीनगर ने 9,66,000 का, हमें समझ नहीं आ रहा है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इतना खर्चा हो रहा है इधर फजूल कामों में, लेकिन जो इंसान मर रहे हैं वहाँ ये टूलिप गार्डन पर फेस्टिवल पर इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं बेचारे छोटे छोटे टूलिप हैं वो मुरझाए जा रहे हैं। अभी हम पिछले 20-25 दिन से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो मर जाएंगे पानी में से, और 8-10 दिन के बाद लाश निकलेगी वहाँ से। मसला ये है कि 3 जुमा हमने नहीं पढ़े हैं, हमने शब बारात नहीं मनाई है, आने वाला रमज़ान है तो हमें नमाज भी नहीं पढ़नी। अब हमें घरों में रहना मैसूर हो गए, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमारा जो वाटर लॉगिंग का जो इशू है वो पूरी तौर पर हल करें, और वरना हम एक भरपूर पातशाही बाग नौगांव के बाशिंदों ने पातशाही बाग लिंक रोड पर धरना देकर साउथ कश्मीर से आ रही गाड़ियों को रोककर कई घंटों तक ट्रैफिक को बंद रखा। मकामी बाशिंदों का कहना है कि साउथ कश्मीर से आ रही गाड़ियों की वजह से ये इलाका कई मुश्किलात में फंस गया और ट्रैफिक दबाव की वजह से रोड मुकम्मल तौर खस्ता हो चुका है। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। चाहते हैं सीधे कि एक तो ये जो साउथ कश्मीर का ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है उसको बंद कीजिए, उनको रूट सनत नगर दीजिए, या उनको पांता चौक उनको रूट दीजिए जैसे पहले वो चलते थे। वही हमारा मकसद है। और ये जो रोड है ये पूरा खराब है, और 8 साल पहले महबूबा मुफ्ती जी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थी, उसने इस रोड का इनॉग्रेशन किया था 4 लेन का। अभी तक वो भी नहीं स्टार्ट हुआ है। हम सफर कर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। उधर करना से दानिशमीर की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते मामलात को मद्देनजर रखते हुए करना इंतजामिया ने टंगडार में तहसीलदार करना की सरबराही में मार्केट में चेकिंग के दौरान बगैर मास्क लोगों पर जुर्माना आयद किया और आवाम से अपील की है कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करें, वरना जुर्माना आयद किया जाएगा। जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज परेड जम्मू के तालिबात ने कोविड-19 के बढ़ते रुझानात के पेश नज़र ऑफलाइन इम्तिहानात में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने इंतजामिया से ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज परेड के तालिबात कल मेन रोड पर एहतजाज कर रही थी। हमारा मेन ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है ये सिर्फ इसके लिए ही है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिया जाए, और अगर ऑनलाइन नहीं भी लेना चाहते हैं, इनके पास अपने 100 रीजंस हो गए एग्ज़ाम नहीं लेने के।
एट लीस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले कॉलेज वाले कि हाँ अगर आपको कोरोना हो जाता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हमारे पेरेंट्स भी हमें लो नहीं करते हैं यहाँ पे कॉलेज में आने के लिए, और लेकिन हमारे एग्जाम जब 9000 बच्चों के बीच में बैठ के होंगे उस टाइम क्या हमें कोरोना नहीं होगा? बस हमें ये जवाब हमारे प्रिंसिपल सर से चाहिए। उसके बाद सबसे पहली चीज़ है जब हमें ये बोला जाता है कि हमारे जो जितने भी रूल्स हैं, जो भी हमारे एक्सपेक्ट्स हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी के फॉलो किए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी की डेट शीट से पहले ही हमारी डेट शीट क्यों निकाली जाती है? पहली चीज। दूसरी चीज है हम एडीएम ऑफिस गए हैं, डीसी ने हमें ये बात बोली है कि अपने कॉलेज में जाओ और उनको बोलो कि हमारी बात माने। वो लोग किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, बस यही चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अगर उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेने हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में पुलिस के नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स फोरम के बैनर तले रिटायर्ड पुलिस एहलकारों ने एक एहतजाज के दौरान फोरम के सदर अजीत सिंह ने छठे और सातवें पे कमीशन की मुराद का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि यह अफसोस का मुकाम है जिन पुलिस एहलकारों ने पूरी जिंदगी रियासत के अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए सर्फ की है, वो आज सड़कों पर एहतजाज करने के लिए मजबूर हैं। सबसे मेन मुद्दा जो है हमारा पे अनामली का है। ये 1/96 से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई, 6 पे कमीशन भी दिया गया और 7th भी नहीं। 1/96 से लेकर 17/10/14 के बीच में जिन लोगों ने सर्विस की है या रिटायर हुए उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। लिहाजा जितनी भी गवर्नमेंट आई सब ने हमें लारा झांसा और वादे दिए। अब हमें उम्मीद थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो ये हमारे साथ इंसाफ करेगी और देराने मसले को हल करेगी। लिहाजा हम जम्मू के जितने भी लीडर हैं सबके पास एक एक करके गए तो किसी ने इसका रिस्पांस जवाब नहीं दिया आज तक। और एक लीडर जो मेरे अपने 70 साल के एक्सपीरियंस में आता है जो अनुराग ठाकर जी हैं, उनको मिले और दोनों टाइम उन्होंने हमारे उस रिप्रेजेंटेशन का जवाब दिया और रिकमेंडेशन भी की। तो अभी हम रिसेंटली जाते हैं काबरा साहब के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास, तो उन्होंने बोला कि भाई आपका डीजी जो है, इसने पहले जब ये डीजी साहब हमारा पे अनामली कमेटी का चेयरमैन था उस वक्त एडीजी था, तो इसने 6 करोड़ रुपए का हमारा जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बनाई है, आज इसने 206 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बना दी। वो बोलते हैं भाई ये तो स्टेट का बजट है, ये कौन सी ये कोई पॉसिबल, आपका डीजी नहीं इंटरेस्टेड है आपके मसले को सॉल्व कराने का, तो आप बताइए तो हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? तो हमारी बात किसी ने भी नहीं सुनी। अब आपके माध्यम से ये हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये हमें कम से कम 10 रिप्रेजेंटेशनें दी हैं, तो गवर्नर साहब के ऑफिस से आज तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि या तो गवर्नर साहब की नॉलेज में नहीं है या नीचे ऑफिस वाले हमें उसका जवाब नहीं दे रहे। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे टाइम दिया जाए और हमारे इस मसले को हल किया जाए ताकि जो बूढ़े लोग हैं रात का सांस लें। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।